Tomorrow is too late. Yesterday is over. And now is exactly the right moment to start. A very good morning to all my dear students and a warm welcome in class of accounts standard 11. We are continuing with our fourth chapter from your second part or your second book, and the name of the chapter is Bills of Exchange. With the inspirational thought, let us start our today's e-class. In our today's e-class, I am going to teach you practical question number 5, which is on your page number 104 of textbook. But before moving to practical question, let us first go through with the theory portion. Now let us begin with the new topic, that is dishonor of a bill. What is that? Let us first understand. In the normal situation, the acceptor of a bill has to pay the money of the bill on its maturity date. Yes, it is very obvious that जब भी टाइम आ जाता है, टर्म ऑफ बिल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ग्रेस डेज भी कंप्लीट हो जाते हैं, at that time the acceptor is supposed to pay the money on the maturity date to whom? To the trader from whom he has purchased goods on credit basis. But on the maturity date, if the acceptor of the bill is not in a position to pay the money of the bill, or does not want to pay the money, or does not pay the money of the bill due to any other reason, it is said that bill is dishonored. Now, what is dishonoring of the bill? जब एक्सेप्टर मैच्योरिटी डेट पे कोई भी रीजन की वजह से अगर वो पेमेंट नहीं करता है, then the bill is said to be dishonored. When जब एक्सेप्टर मैच्योरिटी डेट पे पैसा पे करता नहीं है to the trader. Fine. Due to the dishonor of the bill, drawer or other parties have to face the problem of collection of the money. But obvious है, जो drawer है bill का, उसको तकलीफ हो जाएगी क्योंकि उसने 3 महीना ये सोच के उसको टर्म दिया था कि वो 3 महीने में अपना पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा और वो मुझे पैसा दे देगा ऑन मैच्योरिटी डेट. बट जो बिल ड्रॉवर है उसको तकलीफ हो जाती है when the bill acceptor does not pays the money. What is given? If the bill has been endorsed to someone else or has been discounted with bank, then it is dishonored. A question arises as who will pay the money to whom? Yes, this might be the question arising in your mind as well. What it is given that when if the bill is kept with oneself, the first condition of the disposal or the uses of the bill क्या था? Recollect yourself. The first disposal of the bill was to keep the bill with oneself. जब oneself के पास है तो सही बात है कि मेरे पास अगर बिल पड़ा हुआ है वो डिसऑनर हो जाता है तो वापस से मैं अपने जिसको मैंने सेल्स किया है क्रेडिट पे गुड्स उससे मांगूंगा. फाइन. बट व्हाट इफ the bill has been discounted with bank? अगर हमने बिल पहले ही बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, पहले ही हमने पैसा ले लिया है बैंक में से, तो कौन किसको पैसे भरेगा? A question also arises that if it has been endorsed to someone else, then who is responsible for the payment to whom? कौन किसको पैसा देगा? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहां पर डिफरेंट 4 डिसऑनरिंग के जो टाइप्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा. नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल. जनरली व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड देन इट इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड. फाइन. व्हाट इज दिस नोटेड? नोटेड इज वन ऑफ द लीगल प्रोसीजर. जब बिल मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर हो जाता है, मींस जो एक्सेप्टर है वो पैसा नहीं भरता है, तो फिर सामने वाला उस बिल को नोटिंग करवाता है. दैट मीन्स वो लीगल प्रोसीजर में जाता है. नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज एसेंशियल. ऐसा जबरदस्ती नहीं है पर एडवाइजेबल है. एडवाइस किया जाता है कि हमें लीगल प्रोसीजर करवा लेना चाहिए.
When a bill is dishonored, the holder of the bill can note the dishonor of the bill with the notary. Notary जो एडवोकेट के पास अपन जाते हैं और वो अपन को नोटरी कर देता है. Then in foreign trade, noting of dishonor of bill is compulsory. Foreign trade, that means अगर अपन का इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रहा है और अगले ने पैसे अपन को नहीं दिए हैं, then it becomes very compulsory that the dishonoring of the bill should be noted against notary. नोटरी के पास जाकर अपन को बिल जो हमारा डिसऑनर हो गया है उसका लीगल प्रोसीजर करवाना पड़ता है. When a dishonored bill is presented to the notary for noting, the notary presents the bill again to the acceptor of the bill and orders him to pay the money. फिर नोटरी क्या करेगा, वो डिसऑनर्ड बिल को प्रेजेंट करेगा. किसको प्रेजेंट करेगा? एक्सेप्टर को. बोलेगा उसको कि तुम्हें पैसा दे देना है. ऑर्डर्स हिम टू पे द मनी. हु इज ऑर्डरिंग टू whom? नोटरी इज ordering to the acceptor of the bill to pay the money. Even then, if the acceptor of the bill does not pay the money, treating the bill as dishonored, the notary officially records the dishonor of the bill in his books. फिर अगर ऑर्डर मिलने के बाद भी, नोटरी के कहने के बाद भी, अगर बिल एक्सेप्टर की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है या वो नहीं भरना चाहता या ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस वो पैसा नहीं भरता है, then notary records that dishonoring of the bill in his books. वो फिर लीगल प्रोसीजर में आ जाता है, वो फिर ऑफिशियल बात बन जाती है और फिर उसमें नोटिंग चार्जेस लगाए जाते हैं. Now what are noting charges? The notary charges a certain fee for noting the dishonored bill, which are called noting charges or dishonor charges. Yes, but obvious है, नोटरी के पास अपन गए हैं, लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम, इसके लिए जो नोटरी है वो आपसे फीस लेगा एंड दैट नोटिंग डाउन ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ द बिल इज नोन एज नोटिंग चार्जेस. आपने अपना जो एक्सेप्टर है उसने नहीं भरा पैसा मैच्योरिटी डेट पे, इसके लिए आप नोटरी के पास वो बिल को लेकर गए, नोटरी वाले ने उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की और उसने अपनी सर्विसेज की अगेंस्ट जो फीस लिया है दैट इज नोटिंग चार्जेस. फाइन. These noting charges are paid by the person for getting the dishonor of the bill noted with the notary. यहां पर on the spot, on the time कौन पेमेंट करता है? जिसके पास बिल रिसीवेबल होता है. फाइन. जिसके हाथ में बिल रिसीवेबल है, जो डिसऑनर बिल करवाने गया है, वो हाल फिलहाल फॉर टेम्पररी बेसिस वो नोटरी को नोटिंग चार्जेस देता है. बट द फाइनल लीगल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द नोटिंग चार्जेस is that of the acceptor of the bill because this expense is incurred due to his failure to pay the money on the maturity date. Yes. Say for example, एक ट्रेडर ने गुड्स बेचे हैं तो बिल रिसीवेबल किसके पास होगा? इसी ट्रेडर के पास जिसने बिल ड्रॉ किया है, ड्रॉवर के पास. So right now drawer has visited notary for dishonoring of the bill. तो noting charges right now who is going to bear? The drawer of the bill, जिसके हाथ में बिल रिसीवेबल है. But legally, actually, the final responsibility is of bill acceptor. वो जो noting charges 250, 200 या whatsoever 400 जितना भी नोटरी वाला आपसे चार्जेस लेगा, वो आप किससे चार्जेस वसूल करोगे? आप ड्रॉई से वसूल करोगे, बिल एक्सेप्टर से वसूल करोगे, बिकॉज दैट बिल एक्सेप्टर हैज नॉट पेड द मनी ऑन मैच्योरिटी डेट. उसके फेलियर पर आप उसका एक्सपेंस फॉर टाइम बीइंग भर रहे हो, बट वो एक्चुअल एक्सपेंस किसका है? दैट इज ऑफ ड्रॉई. अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ अ bill. Now let us go through with the example and let us check it out, the accounting treatment. Now accounting entries on dishonor of a bill.
We have seen earlier that there are 4 methods of disposal of a bill. In all the 4 situations, due to any reason, if the bill is dishonored, then accounting entries are given below. Suman drew a bill of certain amount on Chaman, which Chaman accepted and returned. Chaman does not pay the money on maturity date. Here Suman is drawer of the bill and Chaman is acceptor of the bill. By considering 4 alternatives of the disposal of the bill, let us go through with the journal entries. Now सुमन है जो वो बिल ड्रॉवर है और चमन है वो बिल एक्सेप्टर है. फाइन. तो क्या होगा अंडर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिल? फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? When the bill has been kept with oneself, वो बिल रिसीवेबल जो है वो सुमन ने अपने पास रखा है, तब उसकी एंट्री क्या होगी? When the bill is kept with oneself up to the maturity date and is dishonored on maturity date. Fine. Now चमन अकाउंट को वो वापस से रिवर्स करके डेबिट करेगी, वो उसको अपना डेटर बनाएगी. कौन? सुमन. सुमन चमन के लिए वापस से डेटर इसके लिए हो जाता है बिकॉज चमन ने मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट किया नहीं, उसका बिल जो था वो डिसऑनर हो गया. वो बिल को कैंसिल करने के लिए, बिकॉज नाउ द बिल इज नॉट वैलिड, उसकी डेट एक बार क्रॉस हो जाती है, उसके लिए वो अनवैलिड हो जाता है. वो बिल को कैंसिल करने के लिए यहां पे अपन लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल. और नोटरी के पास कौन गया होगा? सुमन गई होगी, बिकॉज बिल रिसीवेबल किसके हाथ में है? इज कैप्ट विथ वनसेल्फ, मींस सुमन के पास ही है मैच्योरिटी पीरियड तक. इसके लिए नोटरी के चार्जेस कौन दे रहा है? राइट नाउ सुमन दे रही है. इसके लिए यहां पे टू कैश आएगा. बीइंग कैश गोज आउट. ये कौन सा कैश है? नोटिंग चार्जेस वाला. दिस इज नॉट द एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ सुमन. सुमन के लिए एक्सपेंस नहीं है. सुमन किससे वसूल करेगी? चमन से. सो बिल रिसीवेबल का जितना भी अमाउंट था वो प्लस कैश का अमाउंट, दैट इज नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, दोनों का क्लब अप करके, दोनों का एडिशन करके अब चमन उसका दैट मच अमाउंट से डेटर बन जाएगा. फाइन. नाउ इन दी बुक्स ऑफ चमन, जब चमन जो एक्सेप्टर है हैज नॉट क्लियर्ड हिज बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, दैट बिल्स पेएबल ऑफ चमन विल बिकम नॉट वैलिड बिकॉज वो वैलिड नहीं है. वो कैंसल करने के लिए हम बिल्स पेएबल को डेबिट करेंगे. अब तक बिल्स पेएबल हमारा क्रेडिट था, अब उसको कैंसल आउट करने के लिए बिल्स पेएबल हमने डेबिट कर दिया है. यस. नाउ दीज आर दी लीगल चार्जेस, दीज आर दी ऑफिशियल चार्जेस इन दी बुक्स ऑफ चमन. ये उसके लिए एक्सपेंस है, इसके लिए यहां पर हमने दिखाया है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. वापस से चमन के लिए सुमन क्या हो जाएगी? क्रेडिटर, बिकॉज सुमन को अभी भी भरना बाकी है. चमन ने मैच्योरिटी टाइम पे सुमन को पैसा नहीं दिया, अब कितना देना पड़ेगा? जितने का बिल्स पेएबल था वो प्लस का नोटिंग चार्जेस. सो इन ऑल सुमन उतने से उसकी क्रेडिटर हो जाएगी. Fine. Is this clear? So let us go through with the first practical question. When the bill is kept with oneself up to the maturity period and the bill has been dishonored. Yes, question number 5 on page number 104. Dashrath Bhai sold goods of 1 lakh to Akash on credit, for which Dashrath Bhai drew a 3 months bill of 1 lakh on Akash, which Akash accepted and returned. Who is drawing the bill? Dashrath Bhai is drawing the bill. So Dashrath Bhai will become the drawer and Akash is accepting. So Akash is drawee. Akash could not pay the money on maturity date and noting charges amounted to 910, which Dashrath Bhai paid in cash. Pass necessary journal entries in the books of both the parties. This is the very first type of dishonor of bill. Dishonor होना मतलब I have taught you in my theory portion. Dishonor होना, I am repeating it again, पैसों
को नहीं भरने की ताकत जब होती है ड्रॉई में, तब उसका बिल डिसऑनर होता है. सो ओवर हियर दशरथ could not pay the amount of 1 lakh rupees on maturity date, so that's why the bill has been dishonored. And right now the amount of noting charges is being borne by Dashrath Bhai but will be recovered from Akash. Fine, ये खर्चा दशरथ भाई का हाल फिलहाल का है, टेम्पररी बेसिस का है, बिकॉज दशरथ भाई ने वो बिल को पेश किया था और नोटिंग चार्जेस लगाए गए हैं, पर दशरथ भाई जो है वो 910 रुपए वसूल करेगा आकाश से. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द जर्नल एंट्रीज. In this question, dates are not given, so we will write the journal entries as per serial number. Now, आकाश को गुड्स बेचे हैं दशरथ ने. वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ दशरथ. फाइन, सो दशरथ ने क्या किया है, आकाश को सेल्स किया है. सो आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. फाइन, ऑफ 1 lakh rupees. इज दिस क्लियर? यहां पे नरेशन हम लिखेंगे, being goods sold to Akash. Fine. Now सेम डेट को दशरथ भाई ने आकाश के नाम का बिल बनाया है. सो दैट विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Akash account, and that bill drawn is of 1 lakh rupees. Fine. So last we will write the narration, being bill drawn for Akash. आकाश के लिए हमने बिल बनाया. Fine. Now at the time of maturity, यहां पे दशरथ भाई को पैसे मिलने वाले हैं. किससे मिलने वाले हैं? आकाश से मिलने वाले हैं, पर डिसऑनर हो गया. इसके लिए वो पैसे अभी आकाश से मिल पा रहे नहीं हैं, और ये जो बिल रिसीवेबल आज दिन तक का था उसे अपन को कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है. सो हम इस बिल को कैंसिल करने के लिए रिवर्स करेंगे और वापस से आकाश जो है वो हमारा डेटर बन जाएगा, बिकॉज आकाश से हमें पैसा मिलने वाला है. आकाश अकाउंट डेबिट कैंसिल करने के लिए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और साथ साथ में दशरथ भाई ने हाल फिलहाल फॉर टेम्पररी बेसिस 910 रुपए पे किया है. इसके लिए कैश गोज आउट फ्रॉम दशरथ, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड. फाइन, बिल इज ऑफ 1 lakh rupees. Okay, and total amount comes to 1,910,000. So आप देख सक रहे हैं, पहले आकाश डेटर था 1 लाख रुपीज से. Now 910 are temporary borne and beared by Dashrath Bhai, but at the end Dashrath Bhai is going to recover it from Akash just because of the dishonor of the bill. Dashrath is like that कि अभी वो हाल फिलहाल भर रहा है 910 रुपए, बट एट दी एंड वो वसूल किससे करेगा? आकाश से. फाइन, सो दिस 910 इज नॉट एक्सपेंस फॉर दशरथ भाई, इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम आकाश, एंड फॉर आकाश दिस 910 इज एक्सपेंस. फाइन, सो दीज वर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दशरथ, एंड नाउ लेट अस पोस्ट द एंट्रीज in the books of आकाश. आकाश ने क्या किया है? दशरथ भाई से गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट बेसिस. Even don't forget to write narration for third, being bill receivable dishonored on maturity date. आकाश ने गुड्स परचेज किए हैं दशरथ भाई से
so purchase account debit, it's then to दशरथ भाई. फाइन. दशरथ भाई से इसने 1 लाख रुपीस के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं. वी विल राइट द नरेशन. बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दशरथ भाई. फाइन. सेकेंड एंट्री यहां पे आकाश बिल पेएबल को एक्सेप्ट करेगा, उसका करंट लायबिलिटी बन जाएगा और दशरथ भाई को हम डेबिट करेंगे. दशरथ भाईज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. फाइन. यहां पर नरेशन लिखोगे आप. बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न्ड. फाइन. ऑफ 1 लाख. यहां पे इस दिन इसने एक्सेप्ट कर लिया है आकाश ने कि मैं 1 लाख रुपीज आपको पे करूंगा. एज एंड व्हेन देयर वाज मैच्योरिटी डेट, जब मैच्योरिटी पीरियड आया तब आकाश की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो दशरथ को 1 लाख रुपीस पे कर सके. इसके लिए बिल डिसऑनर हो गया. ये जो उसका करंट लायबिलिटी था, जो बिल्स पेएबल था, उसे अपन को कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है. एंड जो नोटिंग चार्जेस हैं वो आकाश के लिए एक्स्ट्रा का एक्सपेंस बन जाता है. इसके लिए हम उसको नेम देंगे नोटिंग चार्जेस, दैट इज मेंशन इन योर क्वेश्चन. एंड वापस से दशरथ भाई जो है वो आकाश के लिए अगेन ही इज क्रेडिटर एंड क्रेडिटर ऑल्सो विथ 910 एडिशनल अमाउंट. 1 लाख रुपीस का बिल्स पेएबल था. यहां पर नोटिंग चार्जेस हमारे 910 के हैं. नाउ जब भी वो दशरथ भाई को रिटर्न करेगा पैसा तो 1,910 रुपीज वो रिटर्न करेगा. अलॉन्ग विद दैट हमें यहां पे लास्ट में नरेशन भी लिखना है. बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड noting instead of and along with, being bill dishonored along with noting charges. Fine. Is this clear? So this was the very first case of dishonor when the drawer keeps the bill with himself. जहां पे मेन डिफरेंस आपको यही देखने का है कि जो ड्रॉवर होता है उसके लिए एक्सपेंस नहीं है, तो इसके लिए वो कैश यहां पे वर्ड यूज करेगा बिकॉज कैश गोज आउट राइट नाउ. और जब भी वो आकाश से वसूल करेगा, रिकवर करेगा, एट दैट टाइम 1,910 रुपीज वो उससे लेगा. इज दिस क्लियर? नाउ योर टुडेज होमवर्क इज illustration number 6, which is as good as question number 5 on page number 104, which I have taught you right now. Please do, students, complete your work. Thank you and stay safe at your home. Thank you once again.